it and say yes accordingly. So Rajni 2 पे recording start हो गया है, देख लीजिए. Yeah. So Radhika, you have to start. Okay. Good evening Yeah. and welcome everyone. हमारा जो आज वेबिनार है उसके ऑनलाइन वेबिनार ने इस वजह से सोचा था कि ये जो लॉकडाउन है पैंडेमिक के कारण, तो उसकी वजह से हम लोग ऑलमोस्ट इनिशियली बहुत ही लॉक थे हमारे घर में और ऑनलाइन मोबाइल और इंटरनेट का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो इसके लिए हमने सोचा कि इसका कुछ प्रोडक्टिव यूज़ भी करते हैं. तो इसके लिए जो वेबिनार है हमने ऑर्गेनाइज किया जिसमें आपको फिटनेस, हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट इस सब की जानकारी आप हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं. आप उनसे इस सेशन के बाद जो आपको क्वेश्चन एंड आंसर के लिए भी एक टाइम दिया जाएगा और आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चन आपको अगर कुछ है तो आपको पूछना है. Sorry, this was the glitch. थोड़ा सा bandwidth का issue है राधिका का. So I'm sorry, but I'll take over. I'll continue the program because नहीं तो program interrupt हो रहा है. So Radhika, excuse me, I'll continue. Okay, sir. So we have 4 segments. The first segment is a short talk by me because there is basically COVID and creativity is my topic. The second topic is Rajni Madam, who's a fitness trainer, and second is Shraddha Madam, who's a dietitian, and Rajni Madam, who's a fitness trainer, and Radhika is the coordinator. But due to some bandwidth issues and some issues with the net, they are interrupted. I would just like to start by saying that the idea of this program was basically coming out of something we were working on, which is COVID and creativity. So April onwards, it is March end onwards, we went into a lockdown, and April was just completely gone in just trying to understand what is a lockdown, how to work around it, how to manage things. And as we came into May, we started realizing the seriousness of the pandemic, the number of deaths, the number of people who had a lot of problems, health problems. We lost a couple of good friends who are doctors, and we started thinking as to what we could do in this pandemic, which would be both helpful and creative. So I started out with this program of parenting webinars online, and we have a couple of our speakers. Dr. Meghna Surlikar, who's a dietitian, was one of our first speakers, and we did a couple of webinars for parents in which we did diet, immunity, healthcare in COVID scenario. And from taking it further from there, we had a program on COVID and creativity in a medical college in Pondicherry, where I was the chief guest, and we had the medical students do a program on how to live with COVID. So they had poetry, prose, they had programs, or they had programs in the college, and then they had photography and other competitions. And that program also was a very good success in the month of September. So finally, now we have reached a stage where this month we decided that we need to do 2 or 3 webinars for the mothers on various topics, and this is the first in that series. And what Radhika Inamdar, of course, who's logged in as Shardul Inamdar, her son's name, is basically a online professional who does a lot of work in the creative field, helps to make online advertisements and get business online. So last 4 months, me and a team of volunteers have helped home-based businesses, mainly women's businesses, who come online to help them to grow, to do business in this difficult time. And that is where this COVID and creativity also helped us, because we came up with a few creative solutions for those women. So there was one food business which was launched on Ganesh Chaturthi, which is now almost 2 months and been doing very well. So we gave her some pointers on how to advertise online, how to create an audience, and how to get the people to come into the business and make it a success. Then there are 2 very good examples right in front of us. That is Shraddha Sawant, dietitian, who is doing online dietary counseling for almost a year, much before the COVID started, and has continued doing throughout this COVID. Because basically in COVID, all of us are having issues with lack of exercise, stress, mental and physical, overeating,
or even some of us have lost a lot of weight and all. So that dietitian, as a dietitian, Shraddha has been already doing online. And Rajni is a perfect example of a person who was completely into physical fitness. And when we talk about physical fitness, we're always thinking it's a physical thing. So she had a business. She was on doing it in a very systematic, organized way. She has clients from here to America, and March and April everything shut down. Her fitness studio shut down. So how she shifted online and how she's still continuing to do the fitness courses online is again a part of this COVID and creativity. So a lot of negatives, but then there are a few good things which have come out. One of them is like it's raining outside, it's dark outside. If you're doing this conference in a hall somewhere, half the people would not have turned up. But if you see today, most of the people who wanted to come, almost 25 people are online. So sitting in the comfort of our house, we are doing this webinar, and therefore it's a great idea that COVID is not the end of it. We have to live with COVID and then go beyond COVID and make sure that we survive and thrive and do well online. So that is why the topic given to me was COVID and creativity. And then, like I said, Shraddha has been doing online dietary counseling for more than a year. So I would request Shraddha to take over the program and give the full thought on what she is doing as far as the dietitian's role is concerned, offline and online. You'll have to unmute yourself, Shraddha. Good evening, everyone. Thank you, sir, and Radhika ma'am to giving this opportunity. As sir mentioned कि मैं लास्ट 1 ईयर से ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रही हूँ, जहाँ पे मैं ऑनलाइन मेरे जो कस्टमर्स है या जो मेरे क्लाइंट्स है उनको उनका ऑनलाइन डाइट कंसल्टेशन होता है, उनको जो भी क्वेरीज है वो हम ऑनलाइन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू अ मेल्स, थ्रू अ व्हाट्सएप. आई यूज टू गिव देम अ डाइट चार्ट और डाइट प्लान. उनका डाइट कैसे जा रहा है, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हो रहे हैं, वो थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज और थ्रू अ व्हाट्सएप और थ्रू अ लाइक ईमेल्स वी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. और वहां पे मैं उनको हेल्प करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ कि उनका जो डे टू डे लाइफ में उनको डाइट फॉलो करना है उसे वो कैसे फॉलो करते हैं, कर सके अच्छी तरीके से, उसके लिए मैं हेल्प करती हूँ. तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि हम कोविड-19 पैंडेमिक में फंसे हुए हैं, तो उसके वजह से हर एक कोई जिसको हेल्थ के बारे में कंसर्न है, सबको अभी पता चला है कि हेल्थ इज वेल्थ. सो टू कीप दैट वेल्थ इन योर पॉकेट, हमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है. वो है अपना डाइट और दूसरा है एक्सरसाइज. तो आज मैं आपके साथ डाइट के बारे में बात करने वाली हूँ. जैसे कि डाइट आप जब फॉलो करते हो तो डाइट कभी कभी फॉलो होता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम आपको आप उस डाइट से, उस मोनोटोनस डाइट से बोर हो जाते हो. तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी जिसके वजह से आप माइंडफुल ईटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो. माइंडफुल ईटिंग होता क्या है? माइंडफुल ईटिंग ये है जैसे कि आप जो भी कुछ खा रहे हो या फिर पी रहे हो या फिर अपने बॉडी में डाल रहे हो उसके बारे में अवेयर होना. तो ये चीजें फॉलो करने के लिए, माइंडफुल ईटिंग फॉलो करने के लिए आप कौन से छोटे टिप्स फॉलो कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपको ट्रू डिफाइन करना होगा ट्रू हंगर और नॉन हंगर ट्रिगर्स में. जैसे कि लॉकडाउन के वजह से हम घर में फंसे हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ है, हम 24/7 घर में हैं. तो चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल हो रही है. यानी कि जैसे हम जब ऑफिस में कैरी करते थे तो एक हाथ 2 टिफिन कैरी करते थे, बट अभी घर में है तो बहुत सारी चीजें, फूड आइटम्स इजीली एक्सेसिबल होने की वजह से हमारा ओवर ईटिंग हो रहा है. तो उसके वजह से हम हमारे हेल्थ को हैम्पर कर रहे हैं. तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब भी आपको लगता है आप कुछ खाने के लिए जा रहे हो, तभी सोचिए, एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या सच में मुझे भूख लगी है. अगर आपका आंसर है यस, देन गो अहेड, ईट दैट थिंग. बट अगर आपका आंसर नो है तो वहीं पे स्टॉप कीजिए. सेकेंडली, द सेकेंड टिप इज लाइक यूज अ प्लेट मेथड. जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप जब भी आप कुछ खाना सर्व कर रहे हो खुद के लिए तो स्मॉल प्लेट यूज करने की कोशिश कीजिए. उससे क्या होता है कि हम हमारे ब्रेन को फूल करते हैं और हम हमारे ब्रेन को फूल करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा मात्रा में खाया है. ट्राई टू फॉलो अ लाइक अ हेल्दी प्लेट मेथड.
वो क्या होता है, जब भी आप एक प्लेट लेती हो, फॉर एग्जांपल आपका प्लेट राउंड शेप का है, तो आपको आपके प्लेट को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। उसमें से जो 2 हिस्से होंगे उसमें आप फाइबरस चीजें यानी आपका सलाद और वेजिटेबल खाओगे। जो तीसरा पोर्शन है उसमें आप प्रोटीन लोगे, जिसमें आप वेजिटेरियन हो तो वेज प्रोटीन सोर्स है, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, स्प्राउट्स है, लेग्यूम्स है, वो ले सकते हो। नॉन वेज प्रेफर करते हो तो आप एग, चिकन, फिश ये ले सकते हो। और जो फोर्थ उसमें आप सीरियल कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, यानी आपका राइस, रोटी, भाकरी वो। और आपको लगता है कि हमने स्मॉल प्लेट लिया है तो मेरा पेट शायद से नहीं भरेगा, तो आपको क्या करना है, आप सेकेंड सर्विंग अगर यूज कर रहे हो तो आप वेजिटेबल और सलाद का सर्विंग ले सकते हो, बट सीरियल का सर्विंग लेने अवॉइड कीजिएगा। थर्ड चीज है कि हम हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में खाते हैं। जनरली ये पाया गया है कि स्ट्रेस के वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता। डाइजेशन अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो हम इनडाइजेशन, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, ये सारी चीजों का हमें परेशानी होती है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं खाएंगे, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में खाएंगे, अपना खाना एंजॉय करके खाएंगे। फोर्थ ये है कि आप हमेशा, लोगों को आदत होती है, मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने देखा है कि अगर खाना खाने बैठे हैं तो अगर उन्होंने टीवी चालू किया है या फिर लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर कलीग के साथ गॉसिप कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप विदाउट डिस्ट्रैक्शंस अपना खाना कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमेशा अपने खाने को अच्छी तरीके से चू करके खाएंगे। जैसे कि अगर आप आपके खाने को अच्छी तरीके से चू करते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस इजी होती है। एंड सेकेंडली ये फायदा होता है कि आपके खाना खाने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। उसके वजह से क्या होता है, हमारे पेट के द्वारा हमारे दिमाग को सिग्नल उसी आफ्टर हमारा खाना शुरू होने के बाद 20 मिनट के बाद जाता है। ओके, तो ऐसे होता है। तो अगर आपने बहुत फास्ट फास्ट खा लिया तो होगा ये कि आपका खाना जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे और खाना है और खाना है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको इजीली शांति से हर एक बाइट, जैसे कि बचपन में हमें सिखाते थे कि आपको हर एक बाइट को 32 टाइम्स चू करके खाना है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 32 आपको फॉलो करने हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप आपके खाने को अच्छे से चू करके खाएंगे। ओके, देन गो फॉर द नेचुरल थिंग्स। चूज कीजिए नेचुरल चीजों के लिए। अगर आप नेचुरल चीजें ज्यादा ले रहे हो अपने डाइट में तो आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से मिलते हैं। क्योंकि अगर आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से मिल रहे हैं तो आपको कोई भी मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड कम ले रहे हो तो जो सॉल्ट एंड शुगर आर द टू बेसिक प्रिजर्वेटिव्स जो कि आपके खाने को प्रिजर्व करने की मदद करते हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आते हैं। तो अगर आप जैसे कि कम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो आपके डाइट में तो आप आपके सॉल्ट और शुगर के इंटेक को लिमिटेड कर रहे हो, जो कि आपको आगे चल के बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही साथ आपके खाने में वैरायटी रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। बट हमेशा एप्पल खाओगे तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो कोशिश कीजिए जितना आप सीजनल चीजें खा पाओ, सीजनल वेजिटेबल्स है, सीजनल फ्रूट्स है, उतनी आपकी इम्यूनिटी भी ज्यादा बूस्ट होने के लिए मदद मिलेगी। तो कोशिश कीजिए वो आप फॉलो करें। सिक्स थिंग, जैसे कि जब भी आपको लगता है कि मैं फुल हूँ, वहां पे खाना छोड़ दीजिए। जैसे कि बचपन से हमें सिखाया गया है जो भी आपके प्लेट में सर्व किया है उसे आपको फिनिश करना है। एंड डे टू डे लाइफ में हम घरों घरों में देखते हैं कि जो हाउस होम मेकर्स होते हैं या फिर जो घर की मेन लेडी होती है, थोड़ा सा खाना बचा है मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो सोचिए कि मुझे कितने खाने की जरूरत है, उतना ही खाइए, उससे ज्यादा खाना वेस्ट ना हो। इस डर से या उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसे ओवर ईट मत कीजिए। सो ट्राई टू फॉलो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर जब भी आप डाइट फॉलो करने की कोशिश करते हो फिर रेगुलरली भी डाइट नहीं फॉलो कर रहे हो तो एक डायरी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए जिसमें आप आपका डे टू डे इनटेक, आपके डे टू डे फीलिंग्स,
नोट डाउन करने की कोशिश करोगे, तो उससे होगा ये ना कि हफ्ते भर बाद या फिर 15 डेज के बाद जब आप देखते हो कि मैंने क्या क्या खाया है, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, या फिर जब आप डाइटिशियन के साथ बैठे हो, आपके फिजिकल ट्रेनर के साथ बैठते हो, तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकेंगे कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे लूप होल से, जैसे कि आपकी मेहनत के लिए, उनकी मेहनत के लिए, तो वो आपको और अच्छे से सजेशंस दे पाएंगे। सो ट्राई टू फॉलो अ डायरी, ट्राई टू राइट अ डायरी, जहाँ पे आप सुबह से लेके शाम तक हर रोज आपने क्या क्या खाया है उसके बारे में जानकारी लिखोगे। So these are the some small tips which will help you to stay fit, to stay healthy. Okay, and simultaneously, जैसे कि along with that, for personal diet consultation, if anyone wants a personal diet consultation, they can contact me through a phone call or they can drop me an email. So जैसे कि डाइट इम्पॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वैसे ही एक्सरसाइज भी। सो डाइट एंड एक्सरसाइज गोज हैंड इन हैंड। जैसे मैंने डाइट में जानकारी दी है, मैम को एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देंगी। थैंक यू। ओवर टू यू रजनी। Hello all, good evening. Welcome to the fitness webinar. पिछले 6 महीनों में हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। पैंडेमिक के कारण जितने भी काम हम ऑफलाइन करते थे अभी हमें ऑनलाइन करने पड़ रहे हैं। वर्कआउट फ्रॉम होम ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने। साथ ही जो मेंबर्स मुझसे सालों से जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी तरह की परेशानी हो, और इसीलिए मैंने अनलॉक का इंतजार किए बिना 16 मार्च से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जो कि आज मैं अपने एफर्ट्स और अपने मेंबर्स के सपोर्ट से 6 महीने से एफिशिएंटली पूरे कर रही हूँ। अब मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी जिसमें आप देखेंगे किस तरह से हम क्लास में वर्कआउट करते थे। देखिए। 5, 6, 7, 8, 9, 30. Time Down. यहाँ हमने देखा अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस हो रही है, जैसे फ्रॉग जंप, माउंटेन क्लाइंबर, आर्म्स की एक्सरसाइज हो रही है, स्टैंडिंग क्रंचेस, थायरोबैंड से एक्सरसाइज कर रहे हैं स्ट्रेंथ गेन करने। तो अब ये सारी एक्सरसाइजेस आपने देखी विदाउट मशीन और वेट्स के हम लोग कर रहे हैं। तो अब मैं पहले आपको बताऊंगी फ्लोर एक्सरसाइज क्या होती है। बहुत से जन फ्लोर एक्सरसाइज भी नहीं जानते होंगे, तो उसके लिए मैं बताऊंगी अपने बॉडी वेट के साथ
फ्री हैंड वर्कआउट जब हम करते हैं तो उसे फ्लोर एक्सरसाइज कहते हैं। ये तो आपने देखे मेरे क्लास वर्कआउट के वीडियो क्लिप्स। अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह हम लोग ऑनलाइन वर्कआउट करते हैं। उसके कुछ वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, देखिए आप लोग। यहाँ आपको पहले मैं बताना चाहूंगी, आजकल जब मेरे पास इंक्वायरी आती है तो वे लोग सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि आप ऑनलाइन लेते हो तो हमें किस तरह से देखोगे, बताओगे कि हम रॉन्ग कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपको मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं अपने मेंबर्स को स्मार्ट टीवी के बड़े स्क्रीन पर ऑब्जर्व करती हूँ, या आप लोगों ने देखा, अगर उनका पोस्चर रॉन्ग है तो मैं उन्हें गाइड करती हूँ। साथ ही उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक बताती हूँ कि कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सेल करना है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जितनी अच्छी तरह से हम लोग क्लास में ऑफलाइन वर्कआउट करते थे, उतने ही अच्छी तरह से हम लोग ऑनलाइन भी कर पा रहे। इन 6 महीनों में मेरा एक और एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इन दिनों मुझे काफी उन नई लेडीज ने ज्वाइन किया है जो ऑफलाइन नहीं कर पाती। उनमें पहली तो वे आती हैं जिनके छोटे बच्चे होने के कारण घर से निकलना मुश्किल था। दूसरा, जो ओबेसिटी के कारण ग्रुप में सबके सामने एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तीसरा, मेरे वो ओल्ड क्लाइंट्स जो कल्याण से कनाडा, कोयम्बटूर, सिंगापुर, थाने, नासिक शिफ्ट हो गए हैं, जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, वे बहुत ही खुश हुए और इमीडिएटली उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है और 2-3 महीने से वो लोग इजीली मेरे साथ वर्कआउट करके खुश हैं। अब मैं कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाऊंगी जिसमें आप देखिए फैमिली वर्कआउट कितने अच्छी तरह से हो रहा है। इसमें रुचा थाने से, विनीता नासिक से मुझे ज्वाइन करके अभी खुश है बहुत। साथ ही इसमें देखा होगा आपने कि एक लेडी अपने ट्विंस बेटियों के साथ वर्कआउट कर रही है। वो जब उसके बच्चे 1 महीने के थे तब आई थी मेरे पास कि मैं ज्वाइन करूं। तब उसे मैंने समझाया कि नहीं, इतना जल्दी ज्वाइन करना कुछ खास फायदेमंद नहीं रहेगा। अब 6 महीने के हो जाने दो बच्चों को, फिर ज्वाइन करना। और आज उनकी बेटियां 2 साल की हो गई है, उन्हें 1 साल हो गया है मुझे ज्वाइन करते हुए। आज वो अपनी डॉटर्स के साथ ऑनलाइन वर्कआउट का मजा ले रही है।
तो ये सब थी मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कआउट के कुछ क्लिप्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से मैं ऑफलाइन अपने मेंबर्स को मोटिवेट करती थी और अब किस तरह से ऑनलाइन भी उन्हें मोटिवेट करती हूँ। जब हम लोग ऑफलाइन थे तब मंथ ऑफ मार्च में वुमेन्स डे के पहले मैं 1 वीक का एक्सरसाइज का कंपटीशन रखा करती थी। उसमें जो विनर होते थे वो फिटनेस क्वीन एक बनती थी। ये हमारा हमेशा होता था। दूसरा, हम लोग 6 महीने में 3 महीने में कभी कभी 5 to 7 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करने जाया करते थे। साथ ही और उनको मोटिवेट करने की कुछ नया चेंज लाऊं, वो लोग इंटरेक्ट और अट्रैक्ट हो, उसके लिए मैं कभी कभी दाल ग्रुप बनाती थी, कभी ओवरवेट ग्रुप भी बनाया करती थी, ताकि वो लोग बहुत खुशी खुशी ये सब इंजॉय करते हुए वर्कआउट करते थे। अब मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन क्या करूं, तो मैंने अभी भी उनको मोटिवेट रखने के लिए, उनका ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस हो, इसके लिए सितंबर में 15 डेज चैलेंज स्टार्ट किया, 10 डेज चैलेंज स्टार्ट किया, जिसमें उनका और ज्यादा वेट लॉस करने की मैंने कोशिश की और इनमें बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग सक्सेस हुए। मैं आपको 15 डेज के चैलेंज के रिजल्ट दिखाऊंगी, देखिए आप लोग। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अश्विनी है जिसने 15 दिन में 4 किलो कम किया। ये 7 साल से मेरे पास आ रहे हैं। फिर श्रद्धा, मनीषा, सीना, विनीता, इन्होंने 2 किलो कम किया 15 दिन में। यहाँ आप देखेंगे महिमा है, इसने भी 2 किलो कम किया। रुचा ने 15 दिन में 1 किलो कम किया और वंदना और वर्षा ने 1.5 किलो कम किया। तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और सब लोग बहुत खुश हुए। इसलिए फिर मैंने सेकंड चैलेंज स्टार्ट किया और अभी थर्ड चैलेंज मेरा चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हम लोग बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का कैंपेन है आधा घंटा रोज फिटनेस की डोज, उसी में मेरा एक योगदान है। डाइट और फिटनेस की डोज जरूरी है रोज। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए और इंस्टा पे फॉलो कीजिए। थैंक यू। Rajni, I request Radhika to summarize. एवरीवन, आप सबने अभी हमारे एक्सपर्ट से जो भी ऑनलाइन कैसे स्टार्ट किए फिटनेस एंड डाइटिशियन के कंसल्टेशंस, मतलब लॉकडाउन उन्हें रुका नहीं पाया, दे कंटिन्यू डूइंग देयर प्रोफेशन ऑनलाइन। तो आज हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे होगा, क्योंकि अभी दिख दिया है, दे हैव सेट एन एग्जाम्पल कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिजनेसेस है या फिर प्रोफेशंस है जो जिम बंद है इसके लिए फिटनेस नहीं रुका है। अगर डाइटिशियंस आपके हॉस्पिटल्स में जाके ही, क्लिनिक में जाके ही काम करें तभी आपको मिल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में अभी भी आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी चैट बॉक्स में आपको दिए हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। I got a direct question, रजनी मैडम, आपके लिए है कि हाउ इफेक्टिव इज फैमिली फिटनेस, एज इन सिर्फ बच्चा मोटा है, बच्चे को सब लोग कोसते बैठेंगे, या यू ट्राई टू डू इट फॉर द होल फैमिली, आपका इसमें क्या कहना है? सर, ये मैं हमेशा से सबको कहती हूँ कि अगर किसी लेडी ने ज्वाइन किया है कि अगर आपके हस्बैंड को टाइम है, बच्चों को टाइम है, तो आप उनके साथ वर्कआउट करिए। मैं हमेशा कराने के लिए तैयार हूँ और साथ में वर्कआउट करने का एक अलग ही मजा होता है, जो अगर किसी ने किया है तो समझ सकते हैं। एक दूसरे को देख देख कर इंस्पायर भी होते हैं कि भाई मम्मी पतली है तो मैं भी पतला हो जाऊं, बेटा सोचेगा, हस्बैंड सोचेगा वाइफ पतली है तो मैं भी ट्राई करूं। और साथ में करके डाइट वगैरह का भी बहुत फर्क पड़ता है कि सबने जब सोच लिया है कि हमको वेट लॉस करना ही है, तो अगर घर में मम्मी कम खा रही है तो उसको देख के बच्चा बेटी सब ट्राई करते हैं। 2-4 मेरे ऐसे भी एक्सपीरियंस रहा है कि जिसकी मम्मी आती थी मेरे पास वर्कआउट करने, तो वो बेटी भले ही 6 साल की है लेकिन वो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मुझे खाना कम देना शुरू कर दे, मुझे नहीं चाहिए कि मैं भी ऐसा एक्सरसाइज कर करके परेशान हूँ। तो बच्चे भी मोटिवेट स्टार्टिंग से ही होने लगे। There's another question for Shraddha madam. Do you guarantee results
5 months में इतना weight loss, 15 months में ऐसा, like can you do that? Is it allowed or is it legal? Please unmute, Shraddha. You're muted. हेलो, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर. एक्चुअली सर, पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है कि उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, साथ ही साथ वो कैसे एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं. क्योंकि जैसे मैंने अपने सेशन में कहा था, एक्सरसाइज एंड डाइट, बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड. तो अगर आप सिर्फ डाइट कर रहे हो या सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होता है. तो आपको जब दोनों चीजें डेडिकेशन से करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. बट आई जनरली डोंट से कि आपको इतना वेट लॉस दिखा ही देगा, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. क्योंकि इनिशियली कभी कभी ऐसे होता है कि आपके बॉडी में से वाटर लॉस होता है, फिर कहीं जाके आपके बॉडी में आपको फैट लॉस दिखाई देता है. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस फॉर अ वेट रिडक्शन ऑल्सो. सो इट्स बेटर कि आप आपके पेस से जाए, आप किसी को साथ कंपेयर ना करें कि मुझे इतना वेट लॉस दिखा ही देगा डाइट करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद. Thank you so much. We will always welcome questions. So all of you, I think, have my number or one of the panelists' numbers. So direct the question to Sutin. So thank you very much for attending this short webinar. We'll be doing a series of webinars and we'll try to keep in touch. Thank you very much, Radhika, Rajni, and Shraddha. So nice of you to come for as experts on this panel. And we sign off for today. Thank you. Thank you, Thank you. sir. Thank you.